Hello my munchkins. So in this video we are basically gonna talk about products that we've emptied out in past 2 years, and जैसे कि last 2 months I'm already doing a series where by the end of every month I talk about products that I've emptied out. So if you're new to this channel and watching this very beautiful face for the very first time, then hi guys, my name is Menka and on this channel we mainly talk about skincare, hair care, makeup and beauty related stuff. So basically what I do, I talk about products that I've emptied out and I also give my opinion on those products because I've already finished them. So I have formed my opinion on those products. So yes, if you're interested in watching, then please take a moment and subscribe to my channel and also hit the bell icon that's just beside it so that you guys are notified every time I post a video. Also, I'm being very happy and very proud of myself because I'm way too consistent on Instagram as well as on YouTube. बस बाबा जी, आई होप मैं इसको जिंक्स नहीं कर दूं. आज थोड़े ज़्यादा एम्प्टीज हैं, सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. As usual, we'll start with the hair care. So the first product that comes to my hand is basically not one product, but there are 3 products and all of them are from Plum. So we have Plum shampoo and a hair mask. Now Plum has spoiled me like anything, and also guys, I have received all of them in my PR. So yes, I have Plum avocado shampoo and Plum olive and macadamia healthy hydrating shampoo along with Plum avocado hair mask. Now honestly, I have loved the shampoos and also the conditioner. So once I finished all the other Plum shampoos and conditioners and serums, I'm definitely gonna buy them. So liked it. It's a first of all, Plum is one such brand which is vegan, which is paraben free, sulfate free, cruelty free. What else do you need in a brand or in a product? So आपको पता ही है ये टॉक्सिक फ्री भी है, तो ये अपने प्लास्टिक भी रिसाइकिल करते हैं. तो आपको पता है कि जो आप लगा रहे हो सेफ है, सिक्योर्ड है आपके लिए. So yes, a big thumbs up. Also Plum, if you're watching this video of mine, I am more than happy to collaborate with you guys more often. Moving to the next product, which is again once a very not an important product, we can skip that, but the brand is very good and at least not important for me, but बहुत जनों के लिए वो important हो सकता है. So it is this dry shampoo which is from the very well known brand called as Batiste. It's for heavily volume. It's basically for volume. इनके बहुत सारे variants आते हैं and to be honest, मैं dry shampoos उतना नहीं use करती. जब झरना थी मेरे साथ तब वो ज़्यादातर dry shampoos use करती थी, तो अगर मैंने इसको 20% ख़त्म किया तो उसने 80% ख़त्म किया. So yeah, that's it. I'm sure उसको ये बहुत पसंद था ड्राई शैम्पू यूज करना. ऑल्सो उसके बाल बहुत लंबे थे, तो उसको वो ये इजी हो जाता था यूज करना. That's why I'm sure she used to like this brand. The next hair care product is this one, which is from Pilgrim. Again मेरे को ये PR में मिला था. Pilgrim ने मुझे PR भेजा था. Also Pilgrim is one another brand जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पैम्पर करता है. So Pilgrim की तरफ से मेरे को एडवांस हेयर ग्रोथ सेरम आया था. ये बहुत उनका वायरल प्रोडक्ट गया था एंड ऑनेस्टली मैंने एक बॉटल ख़त्म किया है, बट मैंने काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखा था अपने यहाँ वाले हेयर ग्रोथ पे. बहुत बेबी हेयर्स आने लगे थे. अभी तो मैं कोई और यूज़ कर रही हूँ हेयर ग्रोथ सेरम, बट अगर मेरे को मौका मिलेगा तो I'm definitely gonna repurchase. I'm definitely gonna repurchase it because ये तो मुझे PR में मिला था. Next, moving to these travel size products which are from Forest Essentials. It's basically the hair cleanser, amla, honey, multani mitti wala, and same conditioner and also their शावर वॉश और बेसिकली शावर जेल. तो ये जब मैं ट्रैवल करती हूँ ये सारे प्रोडक्ट्स मुझे बहुत हैंडी डैंडी आते हैं और ये ख़त्म हो गए. मैंने बड़ा वाला भी ले लिया बिकॉज फॉरेस्ट एसेंशियल्स is love. It's absolutely love. So before moving to the next category, which is our face care, let me just tell you all that all the product links would be mentioned in the description box, so don't forget to check that out too. Next category is face care category and इसमें मैं एक साथ में ही 4 प्रोडक्ट्स दिखा देती हूँ. आ ही नहीं रहा, but
these are the products. I'm sure आप लोग समझ ही गए होंगे. So these are from Bioderma and all of them are the micellar waters. Once again ये मुझे PR में मिला था. और Bioderma is one more brand जो कि बहुत ज़्यादा स्पॉइल करती है आपको. So इसके Sensi Bio H2O है रेंज एंड दूसरी है Sebum. ये सेंसिटिव स्किन के लिए है और आई गेस ये वाली ड्राई स्किन के लिए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. सो ऑल्सो नॉट ओनली आई हैव दीज 4. मैंने बहुत पहले भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स के बारे में, इनके माइसलर वाटर्स के बारे में बात किया है. ऑल्सो मेरे को इतने मिलते हैं कि मैं अपनी सिस्टर्स को दे देती हूँ कि जब तुम लोग मेकअप रिमूव करो तो यही यूज करना, बिकॉज दीज आर द बेस्ट. इफ यू हैव ड्राई स्किन, सेंसिटिव स्किन, ऑयली स्किन, these are so amazing. Bioderma knows how to make their products and not only for, मतलब एक ऐसा नहीं कि सिर्फ नॉर्मल स्किन वालों के लिए जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो अच्छे हैं, जो ड्राई स्किन के लिए बनते हैं वो एकदम एप्ट होते हैं, जो ऑयली स्किन वालों के लिए बनते हैं उनके प्रोडक्ट्स भी एकदम एप्ट होते हैं. मेकअप रिमूव करने के बाद द नेक्स्ट स्टेप दैट कम्स इज टू वॉश योर फेस. And उसके लिए I have 2 face washes, but again from both the face washes are from the same brand. So it is from Ravera. Again I got this in my PR. मेरे पास अभी 2 और इनके face washes पड़े हुए हैं. One is in the variant aloe vera and another one is in the variant blueberry. Honestly मुझे blueberry ज़्यादा पसंद आया aloe vera से, because इसकी smell कुछ ज़्यादा ही अच्छी थी. It's a gel based face wash and I definitely loved it. It's very apt for my oily skin. So yeah, definitely looking forward for more such collaborations. आज सारे प्रोडक्ट्स कोलैबोरेशन वाले हैं क्या? Once you wash your face वीकली ये चीज करनी बड़ी जरूरी है एंड वो है कि फेस स्क्रब करना. बट देन अगर आप केमिकल स्क्रब यूज करो तो प्लीज यूज इट इन 15 days, और अगर एकदम बिगनर हो देन ट्राई टू डू इट वंस इन अ मंथ. बट सिंस आई एम नॉट अ बिगनर, मैं काफी ज्यादा करती हूँ, सो आई डू इट इन 15 days. सो आई हैव दीज 2 peeling skin chemical peeling thing, that is face peel, that is AHA BHA PHA 32% from the brand Van Dyke, and the same 30% AHA 2% BHA face peeling solution from the brand Derma Co. Now Derma Co का मुझे PR में मिला था एंड ये भी मुझे शायद PR में मिला था. तो मुझे दोनों ही प्रोडक्ट्स PR में मिले थे एंड ऑनेस्टली मुझे डर्मा को वाला ज्यादा पसंद आया था एज कम्पेयर टू दिस वन. इसका कंसिस्टेंसी उतना मेरे को अच्छा नहीं लगा, बट दिस वन वाज अ शेयर लव. वंस इन अ वाइल फेस फीलिंग करने के बाद द नेक्स्ट स्टेप इज टू अप्लाई अ फेस स्क्रब एंड आई हैव दिस वन from the very OG brand, that is Everyuth का tan removal pack which has chocolate and cherry. Oh my god, the combination is deadly and मुझे खाने का मन कर गया. So yeah, it was a good tan removal pack. If you are a beginner, college going, this one is a great product. But I think मैंने better ये यूज किए हुए फेस मास्क तो मेरे हिसाब से ओकेश है. बट इफ यू आर अ बिगनर, वंस अगेन इट्स ग्रेट फॉर यू. फेस मास्क जब रिमूव करोगे तो नेक्स्ट स्टेप आता है सीरम लगाना एंड उसके लिए वी हैव .N-Key का फेस सीरम, स्किन क्लैरिफाइंग फेस सीरम, टी ट्री एंड क्लैरिफाइंग सेज ऑयल. ऑफ कोर्स मुझे ये PR में ही आया था. आज सारे प्रोडक्ट्स अभी तक के PR वाले हैं, सो डेफिनेटली लाइक्ड दिस वन, इसीलिए ये खत्म हो गया है. बहुत लाइट वेट है, एप्ट है ऑयली स्किन के लिए बिकॉज इसके अंदर टी ट्री है, सो इट्स एप्ट फॉर ऑयली स्किन. I have a basket full of serums. I'm not joking about that. Once they are done, I'm definitely going to repurchase this one. Or else, if .N-Key you are listening to me, can I have this again, please? Serum लगाने के एक स्टेप पहले आता है टोनर लगाना एंड टुडे आई हैव लॉरियल का रिवाइटलिफ्ट क्रिस्टल माइक्रो इसेंस. बेसिकली ये टोनर का ही काम करता है. Along with that, I have their Crystal Revitalift Crystal Gel Cream. So again, मुझे ये कॉम्बो भी PR में मिला था and it's one of the
बेस्ट कॉम्बोज आई हैव एवर यूज। मैं ये डेफिनेटली अभी कुछ दिनों में खरीद लूंगी बिकॉज मेरे जेल मॉइस्चराइजर सारे खत्म हो चुके हैं एंड मेरे पास जो भी है बहुत क्रीम बेस्ड है, तो ये वाला तो मैं डेफिनेटली खरीदने वाली हूँ क्योंकि ये इतना ज़्यादा अच्छा था। एंड ऑल्सो दिस वन वॉज गुड but I think I can skip on this but definitely not on this. Moisturizer was great. आप लोग ने मुझे बहुत बार इसको यूज करते हुए देखा है, बहुत बार इसके लिए बात करते हुए भी देखा है on my Instagram stories, on my Instagram feed, और बहुत I definitely loved it. ये इतने जल्दी आपकी स्किन में अब्सॉर्ब हो जाता है। Along with this, I have one more moisturizer from L'Oreal which is the Glyco Bright, बेसिकली ग्लाइकोलिक एसिड वाला मॉइस्चराइजर है। अगेन ये मेरे को PR में मिला था। ये इनका डे क्रीम है विद SPF 15। बहुत छोटा सा था, आई गेस मैं कहीं ट्रैवल की तो मैं इसको लेके गई थी अपने साथ और वो पूरे ट्रैवल के सीरीज में ही खत्म हो गया मेरा ये वाला मॉइस्चराइजर। डेफिनेटली लाइक्ड इट। ज़्यादा कुछ है नहीं बोलने के लिए, बट इसका मैं सेरम अभी भी यूज कर रही हूँ। सो यार दीज वर सम ऑफ आवर फेस केयर प्रोडक्ट्स. Next, moving to body care products. The first product that I usually use is a body scrub, and today I have Victoria's Secret's Honey Cranberry Body Scrub in the range pink वाले में. Honestly, Victoria's Secret का जब लॉन्च हुआ था मैंने शायद मेरे पास उसके पहले से ही था बिकॉज अर्चिता दी US से लाती थी मेरे लिए, या कोई तो मेरे लिए ये US से ही लाया था if I'm not wrong, but then I definitely loved it. It's an expensive body scrub guys. It retails for 2299. नहीं, देन आई गेस अगर इस पे इंडियन अमाउंट लिखा हुआ है, देन जब विक्टोरिया सीक्रेट इंडिया में लॉन्च हुआ था तभी मैंने फर्स्ट मैंने और झरना ने काफी सारे प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए थे, तो शायद ये उसमें ही हम लोग ने ऑर्डर किया था. सो या दिस इज द बॉडी स्क्रब दैट वी फिनिश्ड. एंड ये झरना के टाइम पे भी मैंने ये फिनिश किया था एंड झरना को भी बहुत अच्छा लगा था. द ओनली प्रॉब्लम विद दिस स्क्रब इज की जब आप वॉशरूम में बैठ के बॉडी स्क्रब करोगे ना तो पूरा फ्लोर ना स्लिपरी हो जाएगा, क्योंकि विक्टोरिया सीक्रेट के बॉडी स्क्रब्स में कुछ तो ऑयल्स ज्यादा है जिसकी वजह से पूरी की पूरी आपकी फ्लोरिंग पूरी की पूरी ऑयली हो जाएगी, तो वो एक प्रॉब्लम रहता है. बट अदरवाइज द स्क्रब इज अमेजिंग. मूविंग टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट विच इज अ बॉडी वॉश, एंड आई हैव फ्रॉम नन अदर देन Bath and Body Works. So now it's their Oud Dark Velvet Oud Shower Gel. मैंने लिटरली 2 बॉटल्स खत्म की है इनकी. Apart than me buying it, मैंने अपनी कजन्स को भी लेके दिया. मैंने अपनी कुछ कजन्स को रेकमेंड किया था, मैंने अपने फ्रेंड्स को रेकमेंड किया, मैंने अपने फ्रेंड्स को लेके दिया. मैंने झरना को ये ट्राई करवाया, उसको उतना स्मेल अच्छा नहीं लगा, उसको बहुत ज़्यादा हैवी लगा स्मेल. बट देन आई डेफिनेटली लव्ड इट. मतलब वर्ड्स है नहीं मेरे पास इसको डिस्क्राइब करने के लिए. ये ना एक ऐसा फीलिंग होता है कि जब आप यूज करो खुद और फिर आप एक्सपीरियंस करो, मतलब एक्सप्लेन करने वाली कुछ नहीं होती है इसमें. देन दिस इज अ शेयर लव. Bath and Body Works. I am manifesting to collaborate with you, work with you. पता नहीं ये कब true होगी, but then I am definitely doing that. Moving to the next product, which is to apply a body moisturizer. क्योंकि body shower से तो moisture निकल ही जाता है, तो उसके लिए I have this Plum Body Loving Body Moisturizer in the variant Tripping Mimosa. Now this is my favorite variant. मतलब सबको पता नहीं क्यों वनीला वाला इतना अच्छा लगता है, मुझे पर्सनली ये अच्छा लगता है. इसका स्मेल इज डिवाइन. अभी भी इसमें है. इसका जो परफ्यूम था ना वो मेरे ऑफिस में पड़ा रहता था, और कभी ऐसे गंदी सी स्मेल मेरे ऑफिस से आई ना, मैं उसको स्प्रिच कर देती थी. एंड मुझे इतनी क्या बताऊँ, मैं शायद आज ही बैठ के इसके ट्रिपिंग मेमोज वाली परफ्यूम ऑर्डर करूंगी क्योंकि मैं मिस कर रही हूँ ये स्मेल. So yes, these are some of the body products that we finished. Next, moving to the category that we all love is makeup. So yes, I have not finished a lot of makeup products, but few that we finished are, the first one is this one, Sugar Cushion Foundation in the shade 50 Mocha. Now honestly I liked this, but it is good for people
who don't have lot of acne marks, अगर डेली वेयर के लिए लगाना है तो ये अच्छा है. बट अगर आपके बहुत ज़्यादा एक्ने मार्क्स हैं और अगर आप किसी इवेंट पे जा रहे हो देन दिस इज़ नॉट गुड फॉर यू. पता नहीं, अब आई डोंट सी शुगर एज अ ब्रांड कमिंग अप अ लॉट विद देयर प्रोडक्ट्स. नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ माइन इज ऑल्सो फ्रॉम शुगर. So this is their most viral product from Sugar, which is the bronzer. It's Contour de Force bronzer in the shade 02 Woody Wonders. ये मैंने literally पूरा का पूरा खत्म कर दिया है. ये honestly मेरा first bronzer था. And कुछ ऐसे आपकी first चीज़ें होती है ना जो आप हमेशा से थोड़ा सा दिल के करीब रखना चाहते हो. बट अनफॉर्चुनेटली मैंने सोचा मैं इसको नहीं यूज़ करती हूँ, थोड़ा सा बचे रहने देते हैं. बट देन आई वाज लाइक नहीं यार, ये मेरी स्पेस मतलब वैनिटी में काफ़ी स्पेस खपा रहा था. लाइक चलो ठीक है, दिल पे पत्थर रख के इसको बट डिस्कार्ड कर देते हैं. एंड ऑल्सो मैं अभी ज़्यादा हूला ब्रॉन्जर यूज़ करती हूँ तो मैं इसको वैसे भी करती भी नहीं हूँ. Next, moving to a lipstick which was my most favorite lipstick of the time, which is from Kiro Beauty. ये तो literally मेरे को यहाँ से भी दिख रहा है कि पूरा ही खत्म हो चुका है इसके अंदर में. Shade is Pink Granite 08 Pink Granite, but क्या तो सुंदर शेड था. अभी भी मतलब ये शेड था, मतलब अब अगर इसको लगाने अभी तो काफ़ी टाइम से इसके अंदर पड़ा हुआ था तो इस कलर निकल आया है. बट यूजुअली इतना कलर है ही नहीं इस प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट है ही नहीं. सो यस, एक तो इसकी स्मेल भी इतनी अच्छी है ना, मतलब लगा के जब ये ड्राई हो जाते हैं ना अपने लिप्स पे इतना सुंदर बैठता है. और हर आई शेडो के साथ, मतलब हर आई लुक के साथ ये आप पे इतना अच्छा लगेगा. आई थिंक एक ऐसा लिप शेड होता है ना जो आपका गो टू लिप शेड होता है. फॉर मी दिस इज इट. नेक्स्ट मूविंग टू मस्कारा विच इज फ्रॉम लैक्मे आइकॉनिक. ये तो मस्कारा ड्राई भी हो गया, खत्म भी हो गया, क्योंकि मैंने जब लैक्मे का वन ब्रांड ट्यूटोरियल किया था तब मैंने ये लिया था. सो यस, इट्स डन एंड डस्टेड. And the last product of our video is this one, which is Bath and Body Works का Winter Berry Ice Hand Wash. Now मुझे hand wash बहुत यूज़ करने की आदत है. So yes, मेरे hand washes भी बहुत ज़्यादा जल्दी ख़त्म हो जाते हैं. So yes, with this we end our empties video for the month of March. I hope you guys are enjoying this series of mine. If yes, then do let me know in the comment section below, and also let me know what more videos you wanna see from my end. मैं try कर रही हूँ as frequent as रह पाऊँ, and also मैं अपना बहुत brainstorm कर रही हूँ कि मैं क्या नई ideas के साथ आ पाऊँ. So yes, if you have any idea then do let me know, and also if you want to follow me on my Instagram, this is my Instagram handle. Please go ahead and follow me. Also if you are wondering मैंने ये मेकअप कैसे किया है, क्या तो ये मेकअप ऑलरेडी जा चुका होगा शॉर्ट्स पे एंड इंस्टाग्राम पे, या अगर नहीं गया होगा तो मैं फ्यूचर में इसकी लिंक डाल दूंगी, आप लोग देख लेना. सो यस, विद दैट आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. टिल देन, बाय गाइस, टेक केयर एंड डू नो दैट आई लव you all so much. Bye.